لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس پرمسرت گھڑی میں میری حاضری ہو رہی ہے. جامعہ سرائے گنگا نگر نیپال کی ایک شاخ ضیاء العلوم چلروکا اور پھر اسی کے تحت چلنے والا مدرسہ عثمان بن عفان لتحفیظ قرآن کریم اور اس کی متعدد شاخیں یہاں بنانے کے لیے تعلیم کا جو انتظام و اہتمام، یہ ساری چیزیں میرے لیے یہاں خوشی کی کئی باتیں ہیں، مسرت کا کئی لمحہ ہے. اللہ رب العالمین کا میں شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے میسر کیا، یہ عطا کیا. جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے. شکر گزار ہوں یہاں کے منتظمین کا، منتظمین جامعہ کا، بالخصوص ناظم اعلیٰ فضیلت الشیخ شمی محمد خان ندوی حفظہ اللہ کا، اور یہاں کے اساتذہ کرام بالخصوص فضیلت الشیخ مولانا تاج الدین سراجی حفظہ اللہ، جن کی کوششوں اور کاوشوں سے یہاں کا انتظام و انصرام ہو رہا ہے. اور شکریہ کے مستحق ہیں یہاں کے وہ اساتذہ کرام جن کی نگرانی میں یہ طلبہ حفظ کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. تمام اساتذہ کرام جو بھی یہاں سے منتسبین ہیں، یہاں جو موجود ہیں، بالخصوص عزیز گرامی، برادر گرامی عزیزم حافظ محبوب عالم سلفی اور عزیز گرامی عزیزم محمد عاصم سراجی حفظہ اللہ، اور یہاں کے روح رواں مولانا مجیب الرحمن مدنی حفظہ اللہ، مجیب الدین مدنی حفظہ اللہ گرامی قدر، جن سے ہمارا کئی طرح سے تعلق ہے. بہرحال تمام حضرات کا شکریہ. عزیز طلبہ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ حضرات دنیا کی سب سے عظیم اور مقدس کتاب کو پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہے ہیں. جس بھی مجلس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کا درس و دراسہ ہوتا ہے، وہ مجلس انتہائی عظیم مجلس ہوتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، بہت سی بشارتیں دی ہیں. ایسی مجلسوں میں رحمت کا نزول ہوتا ہے. یہ صرف مجلسیں جو منعقد کی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی آیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو بھی دنیا میں قرآن کریم کی تعلیم و تعلم سے اپنا رشتہ استوار رکھتے ہیں، وہ انتہائی بہتر اور معزز ہوتے ہیں. میں یہاں ایک اثر آپ لوگوں کے سامنے مسند احمد کے حوالے سے صحیح روایت نقل کرنا چاہتا ہوں. ابو عبد الرحمن مشہور تابعی ہیں، ثقہ تابعی ہیں. ان کا بیان ہے کہ ہم جن صحابہ کرام، اپنے اساتذہ صحابہ کرام سے قرآن کریم کی تعلیم لیتے تھے، ان کا بیان ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات سیکھتے تھے. وہ 10 آیات سیکھنے کے بعد اس کے علم اور عمل کو اپنے اندر اتارتے تھے، اور پھر اسی کو ہم نے اپنا نظریہ بنا لیا، اپنی عادت بنا لیا کہ ہم صحابہ کرام سے 10 آیات سیکھتے تھے اور علم و عمل حاصل کرتے تھے. ان کا بیان ہے کہ فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ، اس طرح سے ہم نے علم اور عمل کو حاصل کیا. تو آپ یہ تلاوت قرآن جو کر رہے ہیں، قرآن مقدس کو جو اپنے سینوں میں یاد کر رہے ہیں، قرآن کے لیے سب سے بڑی فضیلت اور شرف کی بات ہے کہ ہماری یہ مذہبی کتاب جو دستور حیات، دستور زندگی ہے، دنیا میں اتنا زیادہ کسی اور کتاب کو نہیں پڑھا جاتا ہے. دنیا میں اور بھی مقدس کتابیں ہیں، وید ہے یا اور آسمانی کتابیں ہیں، اس کے حفاظ یاد کرنے والے خال خال نظر آئیں گے. ہمارے ہندوستان میں جو مذہبی کتابیں ہیں، ابھی ایک سروے کیا گیا ہے، چند لوگ نہیں نظر آئے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ مجھے یہ پوری کتاب مذہبی کتاب یاد ہے. ہم مسلمانوں کے لیے شرف و فضیلت کی بات ہے کہ ہم نے ہر گلی کوچے میں، مختلف گاؤں میں، قریات میں مل جائیں گے کہ حفاظ کرام بے عین ہی، بلا زیر و زبر کے فرق کے، بلکہ اسی لب و لہجے کے ساتھ قرآن یہ جو معصور ہے ہمارے ہاں، ایک تو قرآن کرام نے تواتر سے ثابت ہے
اس کے علاوہ اس کا لب و لہجہ جو پڑھنے کا طریقہ ہے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے سیکھا اور پھر جس طرح سے صحابہ کرام کو سکھلایا، وہ ایک تواتر سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تو یہ جو حفاظ کی مجلسیں رچائی جاتی ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و لہجے کو ہم لے رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے ان حفاظ کرام کے لیے، ان کے اساتذہ کرام کے لیے، کہ اللہ نے ان کو یہ موقع میسر کیا ہے۔ جو لوگ اس راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اپنا مال صرف کر رہے ہیں، ان کے لیے شرف کی بات ہے، ان کے لیے فضیلت کی بات ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کی کتاب کی خدمت کے لیے اپنا مال صرف کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بات اور ہم مسلمانوں کے حوالے سے، آپ دیکھیں دنیا میں ساری کئی زبانیں ہیں، ہر زبانوں کو سیکھنے کے لیے یہ وصول مقرر ہے کہ اس کے معنی اور مفاہیم کو ہم سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں انگریزی جب پڑھائی جاتی ہے ہماری اسکولوں میں ہو یا کالجز میں ہو، مانٹیسری اسکولوں میں ہو، اس کا الفابیٹک حروف جب سیکھتے ہیں تو معنی کو ایف فار ایپل وہ ساری چیزیں رٹائی جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ایک کمی یہ پائی جاتی ہے مسلمانوں کے ہاں کہ ہم صرف قرآن مقدس کو پڑھنا اور پڑھانا شرف و فضیلت کی بات سمجھتے ہیں۔ یہ ہر شرف و فضیلت کی بات، اس کے ہر حرف پر ایک نیکی ہے، 10 نیکی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جامع ترمذی وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ ایک حرف اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس پر 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، اور پھر اسی سے 700 گنا تک نیکیاں بڑھائی جا سکتی ہیں آپ کے خشوع اور خضوع اخلاص و للہیت کے بدولت۔ تو اس کا پڑھنا پڑھانا شرف و فضیلت کی بات ہے، لیکن اس کا عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جو ابتدائی طور پر ابو عبد الرحمن کے حوالے سے میں نے روایت نقل کی کہ آپ اس کا علم حاصل تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حفظ کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں داخل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے سمجھیں بھی۔ حفاظ کرام سے جو لوگ یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہر ایک کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں اور شکریہ ادا کر رہا ہوں ان کے اساتذہ کرام کا کہ ان لوگوں نے نہایت محنت و کوشش کے ساتھ، بطور خاص میں خود ایک گارجین کی حیثیت سے، خوشی کی بات ہے کہ میرا لخت جگر یہاں سے حفظ قرآن کریم مکمل کر رہا ہے، تو ایک گارجین کی حیثیت سے بھی میں شکر گزار ہوں یہاں کے منتظمین کا، یہاں کے اساتذہ کرام کا کہ آپ نے نہایت خاص توجہ کے ساتھ ان بچوں کی نگہداشت کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی بار الہ ہم تمام لوگوں کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم تمام کی کاموں کو قبول فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکراً و جزاکم اللہ خیرہ۔ اب میں بلا تاخیر صدر مجلس ناظم محترم فضیلت الشیخ شمیم احمد ندوی حفظہ اللہ کو اس شعر کے ساتھ آواز دوں گا۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اب ہمارے ناظم محترم کا کلیدی خطاب ہوگا، اس کے بعد جو انعامات کی تقسیم کی جو اصل مجلس ہے وہ مجلس ہوگی، اس کے بعد میں کھانے کا اعلان ہوگا پھر انشاءاللہ۔ پہنچائے لیں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ وقال تعالى في مقام آخر، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت للكافرين۔ محترم
असातिज़ा मदरसा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, असातिज़ा मदरसा ज़ियाउल उलूम और असातिज़ा कुल्लियतुज़ ज़हरा लिल बनात और असातिज़ा जामिया सिराजुल उलूम अस्सलफ़िया झंडा नगर नेपाल, हमारे रफ़ीक़ ख़ास डॉक्टर मंजूर अहमद ख़ान और इस मजलिस में हाजिर तमाम मेहमानान गिरामी, इन तलबाए अजीज़ के सरपरस्त हजरात और इस इदारे से जुड़े हुए इस इलाके के चन्नोटा और उसके मज़ाफ़ात के हमारे ख़ास मेहमान, जैसा कि आप बराबर इस मजलिस के तारुफ में ये सुनते रहे हैं कि ये मजलिस जो आरास्ता की गई है दरअसल उन 4 तलबा की तकरीम के लिए है, उन 4 तलबा की इज्जत अफजाई के लिए है जिन्होंने कुरान करीम को याद करके, कुरान करीम का हिफ्ज मुकम्मल करके और मतलूबा अदवार भी मुकम्मल कर लिए हैं। और जैसा कि अभी मुझे इस मजलिस के निज़ामत करने वाले मौलाना खालिद रशीद साहब ने बताया कि 7 अदवार तो शर्त है सनद लेने के लिए, लेकिन इन तलबा ने 10-10, 12-12 अदवार मुकम्मल किए हैं। ये चीज़ जहां इन तलबा की मेहनत शाक़ा की दलील है, वहीं इनकी निगरानी करने वाले और इनको असबाक देने वाले इनके असातिज़ा की भी मेहनत की दलील है। इस मौके पर मैं जामिया सिराजुल उलूम अस्सलफ़िया झंडा नगर के शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान जो मदरसा ज़ैद इब्न साबित के नाम से वहां पर चलाया जा रहा है और मदरसा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के नाम से यहाँ पर चलाया जा रहा है, बतौर ख़ास मदरसा ज़ैद बिन साबित के असातिज़ा से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपसे ये कहा जाता है कि तलबा के लिए साल भर में 7 दौर किसी न किसी तरह मुकम्मल कराएं, तो आप इस काम को बहुत मुश्किल समझते हैं और उसके लिए तरह तरह के उज़्र मेरे सामने पेश करते हैं। आपके सामने मिसाल मौजूद है कि ये 9 मौलूद इदारा जो मदरसा ज़ैद इब्न साबित के 50 साल के बाद कायम किया गया है, तकरीबन 50 साल के बाद कायम किया गया है। अभी मदरसा ज़ैद इब्न साबित के मुकाबले में नाम इसका ज़ैद इब्न साबित तो भी जल्दी रखा गया है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान के बाद रखा गया है जब कुछ कानूनी तकाज़ों से ज़रूरत पड़ी इस बात की कि इसका भी कोई ख़ास नाम होना चाहिए, तो मदरसा ज़ैद इब्न साबित नाम मैंने मुंतखब किया, क्योंकि मदरसा ज़ैद इब्न साबित सहाबे किराम में से वो अजीम शख्सियत है जिनको कुरान का खास शगफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अता हुआ था और उन्होंने कुरान पाक की हिफाजत के लिए, कुरान पाक को लिखने के लिए और वही को जमा करने के लिए बेमिसाल कोशिश की। तो उनके नाम पर बहुत से इदारे चलते हैं, बहुत से तहफीज के मदारिस चलते हैं, तो मदरसा ज़ैद इब्न साबित के नाम से वहां कायम किया गया। लेकिन मदरसा जैसा कि आप जानते हैं 50-60 साल पहले कायम किया गया था और यहाँ चन्नोटा में सिर्फ 10-12 साल पहले कायम किया गया है। लेकिन आप कारकर्दगी में नुमाया फर्क समझ सकते हैं और आप यहाँ पर आए हैं, आपको दावत दी गई है, आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि जो काम हमारे लिए मुश्किल नजर आ रहा है, जामिया सिराजुल उलूम के लिए, ज़ैद इब्न साबित के लिए जो काम मुश्किल और महाल नजर आ रहा है, वही काम यहाँ चन्नोटा के असातिज़ा ने बिल्कुल आसान बना करके पेश कर दिया है। चुनांचे ये हमारे अजीज तलबा जिन्होंने 10-10, 12-12 अदवार कुरान पाक के मुकम्मल कर लिए हैं, तो ये हमारी तरफ से ये तलबा भी और बाकी दीगर तलबा जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इनको पढ़ाने वाले और इनकी तालीम और तरबियत पर मामूर जो असातिज़ा हैं, इनके इंतजाम पर जो मामूर असातिज़ा हैं, ये सब हमारी तरफ से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी कारकर्दगी से ये साबित कर दिया कि इनको कुरान पाक से कितनी मोहब्बत है, कुरान पाक की कितनी इज्जत इनके दिलों के अंदर मौजूद है और कुरान पाक के हुसूल के लिए, इसके हिफ्ज के लिए आज ये इसको हिफ्ज कर रहे हैं। कल इंशाअल्लाह जब ये जामिया सिराजुल उलूम के शोबा अरबी में जाएंगे, दाखिला लेंगे,
तो उसके बाद इस कुरान के मानी और मफहूम और इसके मतलब को समझेंगे, और यही तलबा आगे चल करके मुफस्सिर कुरान बनेंगे, कुरान पाक के शारे और तर्जुमान बनेंगे और कुरान पाक की तफसीर का काम करेंगे। तो जब ये मेहनत शुरू से जब ये मेहनत कर रहे हैं तो इनको मेहनत करने की आदत पड़ी हुई है। दुनिया का कोई भी ऐसा कलाम, दुनिया की कोई भी ऐसी किताब नहीं है कि जिसका माना और मतलब समझे बगैर उसको इतनी आसानी से याद किया जा सके कि तलबा 2-2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में पूरे कुरान को याद कर लेते हैं, जिसमें ये 114 सूरतें हैं और 500, 600, 700 सफ़हात हैं, और उस कुरान का मतलब तालिब इल्म नहीं समझता है। 10 साल का, 12 साल का, 14 साल का बच्चा जो कुरान पाक का मफहूम नहीं समझता है, अरबी जबान से नाबलद है, लेकिन उसके बाद वो कुरान पाक को किस तरह से याद कर लेता है, किस तरह से अपने सीने में महफूज कर लेता है, और सिर्फ महफूज नहीं करता है, ज़ेर ज़बर की पाबंदी के साथ में अपने सीने में कैद कर लेता है, कुरान पाक की आयतों को हिफ्ज कर लेता है, ज़ेर ज़बर की पाबंदी के साथ, एक एक हर्फ की पाबंदी के साथ, मखारिज हुरूफ के साथ, कि कहां कौन सा हरफ, कौन सा लफ्ज स्वाद से है, कौन सीन से है, कौन से है, तो उसके ये हुरूफ में मखारिज हुरूफ का जो फर्क है उसकी पाबंदी के साथ, क्योंकि अरबी जबान एक ऐसी जबान है कि जिसमें एक लफ्ज किसी हरफ से उसका माना कुछ और है और दूसरे हरफ से उसका माना कुछ और हो जाता है। कोई लफ्ज सीन से उसका मफहूम कुछ और है और स्वाद से उसका मफहूम कुछ और है, तो जब कोई तालिब इल्म सीन और स्वाद के फर्क को भूल करके कुरान को पढ़ेगा तो मतलब कुछ का कुछ हो जाएगा। ज़ेर और ज़बर, ज़बर और पेश से के फर्क से तो मफहूम और बिगड़ जाता है, क्योंकि अरबी में ज़बर रहता है, फाइल ज़बर मफूल को कहते हैं जिसका जो काम किया जाने वाला है, और पेश फाइल को कहते हैं। अब अगर पेश की जगह पर ज़बर और ज़बर की जगह पर पेश पढ़ दे तो मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, और बसा औकात अगर आदमी जानबूझ करके ऐसा पढ़ दे तो कुफ्र तक मामला पहुंच जाएगा। तो कुरान पाक को याद करने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, और उसके बाद उसमें ज़ेर ज़बर की पाबंदी भी उतनी ही जरूरी होती है। तो एक ऐसा कलाम, एक ऐसी जबान कि जिसके मफहूम से तालिब इल्म नाआशना होता है, नावाकिफ होता है, और उसके बाद उसको याद कर लेता है, अपने सीने में महफूज कर लेता है, तो ये बहुत बड़े शरफ की बात है, और अल्लाह की तौफीक के बगैर ये मुमकिन नहीं है। आज इन तलबा को यहाँ पर एजाज से नवाजा जा रहा है, इनकी तकरीम की जा रही, हत्तल इम्कान जो कुछ भी मुमकिन है उनकी तकरीम की जा रही है, इनको इनामात से नवाजा जा रहा है। तो ये इन तलबा के लिए और इनके सरपरस्तों के लिए, इनके वालिदैन के लिए यकीनन खुशी की बात है। इनको साइकिल दी जाएगी, जैसा कि अभी ऐलान किया गया, इन चारों बच्चों को साइकिलें दी जाएंगी, चांदी का सिक्का दिया जाएगा, इनको लिबास दिया जाएगा, कपड़ा दिया जाएगा, और इस भरी मजलिस में इनकी तकरीम होगी, इनकी इज्जत अफजाई होगी। यकीनन खुशी की बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं और इस मजलिस में हाजिर तमाम लोगों को यह बात बताऊं कि यह तकरीम तो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जो तकरीम होगी इनकी, उसके मुकाबले में तो एक परे काह के बराबर भी ये तकरीम कुछ माने नहीं रखती है। दुनिया का बड़े से बड़ा खजाना दे दिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो इनकी तकरीम होगी, जो इनकी इज्जत अफजाई होगी, उसका हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। क़यामत का दिन आएगा, हाफिज कुरान को बुलाया जाएगा और उस हाफिज कुरान को हुल्लतुल करामा पहनाया जाएगा, करामत का, तकरीम का लिबास पहनाया जाएगा। उसको बेहतरीन शाही नहीं कह सकते हैं, जन्नती लिबास पहनाया जाएगा, बेहतरीन हुल्लतुल करामा पहनाया जाएगा, और उसके बाद उसके सर पर ताज रखा जाएगा और उससे कहा जाएगा कि कुरान पाक पढ़ते जाओ, कुरान की आयतें पढ़ते जाओ और जन्नत की सीढ़ियां तय करते जाओ। जहां जाकर के तुम्हारा कुरान खत्म होगा, जहां जाकर के तुम्हारे पढ़ने का मकाम खत्म होगा, वहां जाकर के तुम्हारा जन्नत का मकाम और जन्नत का दर्जा खत्म होगा। जाहिर है कुरान कितना बड़ा है, कितनी ज़ख़ीम किताब है, कितनी आयात है, कितने हुरूफ हैं, कितनी सूरतें हैं, और एक तालिब इल्म जब उसको पढ़ना शुरू करेगा, यानी आप ऐसा समझिए कि कोई आदमी, कोई तालिब इल्म अगर तेज पढ़ने वाला हो तो 8 घंटे में, 10 घंटे में
और 6 घंटे 7 घंटे में हदर के साथ, तेजी के साथ पढ़ सकता है, तो उतनी देर तक गोया कि वो जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जाएगा, तो कितने ऊंचे मकाम पर फायज होगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इनके वालिदैन को बुलाया जाएगा। जो बच्चे हमारे फारिग हो रहे हैं, उनके वालिद, उनके सरपरस्त इस मजलिस में अगर मौजूद हैं, तो उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो कितने बड़े एजाज और कितने बड़े शरफ से नवाजे जाएंगे क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने, कि उनके सर पर भी ताज रखा जाएगा, हुल्लतुल करामा पहनाया जाएगा, और उसके बाद उनकी इज्जत अफजाई और तकरीम होगी, और उनको जन्नत में दाखिले का टिकट मिल जाएगा। वो पूछेगा बंदा कि अल्लाह, मैंने तो कोई ऐसी इतनी बड़ी नेकी की नहीं दुनिया में, तो मेरी इतनी बड़ी इज्जत क्यों बढ़ाई जा रही है? तो कहा, तुमने नहीं की थी, लेकिन तुमने अपने बेटे को कुरान पाक हिफ्ज कराया था, कुरान पढ़वाया था, और उस बच्चे की इस कुरान पढ़ने की वजह से उसका सवाब तुम्हारे भी नामे आमाल में लिखा जाता रहा है, और आज तुमको इतने बड़े एजाज से नवाजा जा रहा है। तो आज दुनिया में हम कितनी तकरीम कर सकते हैं, किसी को क्या दे सकते हैं, हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है, हम किसी को कौन सा इनाम दे सकते हैं? असल इनाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने मिलेगा। जैसा कि हदीस पाक के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान पढ़े, और वो सबसे बेहतर शख्स है जो कुरान की तालीम दे। यानी ये तलबा जो कुरान पढ़ रहे हैं, और वो असातिज़ा, वो हुफ्फाज़ किराम जो इनको कुरान पढ़ा रहे हैं, दोनों अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक दोनों अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इस रूए जमीन पर पाए जाने वाले तमाम इंसानों में सबसे बेहतर है। तमाम इंसानों में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कुरान पढ़ें और जो कुरान पढ़ाएं। पढ़ने में सब कुछ आता है, हिफ्ज ही नहीं है। कुरान रोजाना आप पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, कुरान की तिलावत का भी बहुत बड़ा सवाब है। 1 हरफ पर 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दी कि ये मत समझो कि अल अलिफ लाम मीम तुमने अगर कहा तो अल अलिफ हरफुन वल लाम हरफुन वल मीम हरफुन, ये मत समझो कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक अलग हरफ है, लाम एक अलग हरफ है, और मीम एक अलग हरफ है। तो गोया कि किसी ने अगर सिर्फ अलिफ लाम मीम कहा तो वो 30 नेकियों का हकदार करार पाया। इसी तरह से पूरा कुरान अगर कोई पढ़ता है कितना सवाब है। अगर आदमी आराम से मामूल बना ले तो रोजाना 1 पारा पढ़ना कुछ मुश्किल काम नहीं है, महीने में कुरान खत्म हो जाएगा। आमतौर से देखा यह गया है कि रमजान में तो लोग कुरान की तिलावत पाबंदी से करते हैं, और गैर रमजान में उसको जरूरी नहीं समझते हैं। हालांकि अगरचे रमजान मुबारक और मुकद्दस महीना है, लेकिन कुरान पाक पढ़ने का सवाब तो हमेशा है। जब भी पढ़ा जाएगा, जिस महीने में भी पढ़ा जाएगा, उसको ये नेकी मिलेगी, ये सवाब उसके नामे आमाल में दर्ज किया जाएगा। ये अदारा मदरसा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान जामिया सिराजुल उलूम के सामने या ज़ैद इब्न साबित के सामने बहुत नौमौलूद है। जब शुरू में ये कायम किया गया, 10 साल पहले तकरीबन जब ये कायम किया गया, तो वहां से बच्चों का दाखिला करके यहाँ भेजा जाता था। तो बच्चे यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं होते थे। बहुत से बच्चे हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क के थे, बहुत से बच्चे बढ़नी और आसपास के गांवों के थे, बहुत से बच्चे और थोड़े दूर दराज के इलाकों के थे। तो यहाँ पर चंदौटा में वो आना नहीं चाहते थे, तो उनको तरह तरह की सहूलियात दी जाती थी, उनको तरह तरह के लालच दिया जाता था, और कभी कभी उनके साथ सख्ती भी की जाती थी कि तुम्हारा दाखिला चंदौटा में ही हुआ है, इसलिए तुमको हर हाल में चंदौटा जाना पड़ेगा। आज क्या हाल है कि चंदौटा के इस मदरसे में आना, मदरसा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान में दाखिला लेना तलबा की पहली तरजीह बन गई है। अब यहाँ जगह कम है, हॉस्टल नहीं है, रहने की जगह कम है, यहाँ मकतब ज़ियाउल उलूम का चल रहा है, उसी कमरे में, उन्हीं कमरों में बच्चे दिन में पढ़ते हैं, और ये हमारे हिफ्ज़ के बच्चे रात में सोते हैं। इंशाअल्लाह इनकी रिहाइश का अच्छा माकूल इंतजाम जल्द ही हो जाएगा, उसके लिए मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ। तो ये सहूलियात आज भी यही है कि इनके पास ये रहने के लिए कोई अलग कोई हॉस्टल नहीं है, तो तलबा आना नहीं चाहते थे। लेकिन आज इन सारी चीजों के बावजूद तलबा की पहली तरजीह है कि हम मदरसा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान में जाकर के दाखिला लें और पढ़ें।
उसकी वजह ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ इजाफी सहूलत है या यहाँ पर इनको नाश्ता मिलता है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको कि कल ही मैंने यहाँ के बारे में, यहाँ की कारकर्दगी के बारे में मदरसा ज़ैद इब्न साबित के असातिज़ा से बात किया कि आपके यहाँ कितना दौर हो रहा है, तो बड़ा मायूस कुन जवाब दिया उन्होंने, जिससे मुझे बहुत तकलीफ पहुंची। तो मैंने कहा चन्नौटा में तो ऐसा नहीं है, वही बच्चे हैं, वही मदरसा है, सब कुछ है। तो कहा वजह उसकी यह है कि वहां नाश्ता मिलता है। ये इतना फुसफुसा, बोदा और इतना क्या मैं कहूं कैसा जवाब था। नाश्ता तो हर तालिब इल्म करता है, अपनी जेब से पैसा खर्च करे, उसके घर वाले दें, उसके सरपरस्त दें, नाश्ता करता है। सिर्फ नाश्ता करने से कोई तालिब इल्म 12 दौर कर लेगा और नाश्ता मदरसे से ना मिले तो 2 ही दौर पे रह जाएगा? ये इंतहाई भोंडा जवाब था और ये जवाब मुझे उम्मीद नहीं थी कि जामिया सिराजुल उलूम का कोई उस्ताद देगा। तो बहरहाल ये हम वो असातिज़ा भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए और इस बात पर गौर करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी कमी है जिसकी वजह से हमारे तलबा मुमताज नहीं हो रहे हैं, हमारे तलबा किसी इम्तियाज से नवाजे नहीं जा रहे हैं, हमारे तलबा समाज में अच्छा मुकाम नहीं पैदा कर रहे हैं। तो कमी किधर से है? इंतजामिया की तरफ से है कि हमारी तरफ से है? जो इंतजामिया जामिया सिराजुल उलूम के मदरसा ज़ैद इब्न साबित को चलाती है, वही इंतजामिया तो यहाँ के मामलात को भी देखती है। और अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है तो जो मैं मदरसा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के लिए जो सहूलियात यहाँ पर दे रहा हूँ और यहाँ की जिस तरह से निगरानी कर रहा हूँ, वही सारी चीजें आपके साथ भी हैं। ये अलग बात है। ये एक चीज फर्क है कि यहाँ के, मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के स्टाफ के लोग, खास तौर से यहाँ के इंतजामी जिम्मेदारियों को से ओहदा बरा होने वाले मौलाना ताजुद्दीन सिराजी, वो दिन रात मेहनत करते हैं, यहाँ तदरीस के फराइज भी अंजाम देते हैं, इंतजामी मामलात को भी देखते हैं, खाने पीने के मामलात को भी देखते हैं, मतबख को भी देखते हैं, मतबख की जरूरियात को भी देखते हैं, यहाँ के हिसाब किताब को भी देखते हैं, और अगर कोई तामीरी काम चल रहा होता है तो उस तामीरी काम की भी निगरानी करते हैं। और बहुत से कामों से इन्होंने मेरे बोझ को हल्का कर दिया है, बहुत काम इन्होंने कर करके। फिर मैं खास तौर से यहाँ के मुकामी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के मुकामी लोगों को इस इदारे से जो लगाव है, उनको जो दिलचस्पी है और इस इदारे की तामीर और तरक्की के जिस तरह से यहाँ के लोग ख्वाहिशमंद हैं, आज जो ये इनाम दिया जा रहा है, मैं आपका यहीं पर ऐलान करना चाहता हूं कि 1 पैसे का बार जामिया के ऊपर या मेरे ऊपर नहीं डाला गया है। 1 पैसे का बार ना यहाँ के दिए जाने वाले इनामात के सिलसिले में, ना इंतजामात के सिलसिले में, ना खाने पीने के सिलसिले में 1 पैसे का बार मुझ पर नहीं डाला गया, यानी जामिया सिराजुल उलूम पर नहीं डाला गया। और बगैर किसी तहरीक के मौलाना ताजुद्दीन सिराजी, मौलाना मुजीबुद्दीन साहब और यहाँ के मुकामी लोग जो हैं, जो बराबर इस इदारे से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने अपने तौर पर ये तहरीक चलाई और उसके बाद ये खुत्ता भी इन्हीं का पेश किया हुआ है। ये खुत्ता भी मैंने नहीं पेश किया है। मेरी ये आदत नहीं है कि किसी भी काम का क्रेडिट खुद ले लूं जो दूसरे लोग कर रहे हैं। मैंने ये खुत्ता भी नहीं पेश किया है, मैंने ये प्रोग्राम भी नहीं मैनेज किया है, मैंने इन तलबा को दिया जाने वाला इनाम भी नहीं मैनेज किया है। मैंने इस सिलसिले में सिर्फ मंजूरी दी है। बाकी मैंने मौलाना ताजुद्दीन साहब ने जब मेरे सामने अपना ये खुत्ता पेश किया तो मैंने कहा, मौलवी साहब, मैं सिर्फ उसी बात को मानूंगा, उसी बात की मंजूरी दूंगा, उसी शर्त पर मंजूरी दूंगा जब जामिया के ऊपर कोई बोझ ना पड़े। तो उन्होंने कहा, आपके ऊपर मालियात का कोई बोझ मैं नहीं डालूंगा, मैं अपने तौर पर यहाँ के लोगों से, खास लोगों से ताउन हासिल करूंगा और उसके बाद तलबा को इनाम देने के लिए या यहाँ का प्रोग्राम चलाने के लिए जो भी खर्च आएगा मैं अपने तौर पर करूंगा। और आज इन्होंने इसको करके दिखा दिया और आज आपके सामने उसके नतायज मौजूद हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे ये अजीज तलबा आज यहाँ पर इनाम से नवाजे जाएंगे। इस इनाम को कोई पैसे में न तौलिए, बल्कि इतने लोगों के सामने जामिया की तरफ से, मदरसा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की जानिब से इनाम के हकदार ठहराए गए हैं। और कल हो सकता है किसी बड़े मुसाबके में आपको बड़े से बड़ा इनाम मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 1 महीने से थोड़ा ही ज्यादा हुआ है
अभी 21, 22, 23 दिसंबर को, आवाज 29 जनवरी है, एक महीना और एक हफ्ता या समझिए कि 40 दिन ही ज्यादा से ज्यादा हुआ है, काठमांडू में वजारा शऊनुल इस्लामिया की तरफ से, वजारा शऊनुल इस्लामिया सऊदी अरब की तरफ से एक बड़े अजीमुशान मुसाबके का इनेकाद किया गया। उस मुसाबके में पूरे मुल्क नेपाल से 580 हुफ्फाज तलबा ने शिरकत की। कितने? 580 तलबा ने पूरे नेपाल के मगरिब से लेकर मशरिक तक के मदारिस के, जहां पर हिफ्ज की तालीम होती है, वहां के तलबा ने शिरकत किया। उनमें हमारे जामिया सिराजुल उलूम में पढ़ने वाले तलबा भी शरीक हुए। हमारे ही जामिया के एक तालिब इल्म ने पूरे कुरान का जो पहला जुमरा था, कई जुमरे बनाए गए थे, कई ग्रेड बनाए गए थे, तो उनमें पूरे कुरान का जो पहला जुमरा था, उस जुमरे का जो पहला इनाम था, वो जामिया सिराजुल उलूम में पढ़ने वाले एक तालिब इल्म को मिला। और ये हमारे लिए खुशी और एजाज की बात है। और उसमें, उस प्रोग्राम में यानी सिर्फ अहले हदीस तलबा नहीं शरीक हुए थे, देवबंदी भी थे, जमात इस्लामी के लोग भी थे, दूसरे मकातिबे फिक्र के तलबा मौजूद थे। मैं नहीं जानता कि बरेलवी मकतबे फिक्र के तलबा थे या नहीं थे, लेकिन कम से कम देवबंदी और जमात इस्लामी के तलबा, वहां पर मदारिस के तलबा मौजूद थे, जिनके बारे में आमतौर से यह समझा जाता है कि वहां पर हिफ्ज और तजवीद की तालीम अहले हदीस मदरसों से ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपको जान करके खुशी होगी कि हमारे जामिया सिराजुल उलूम में पढ़ने वाले एक तालिब इल्म ने पहला इनाम हासिल किया। और वो इनाम कोई छोटा मोटा सिर्फ दिखावे का इनाम नहीं था, उसको नकद $3000 यानी नेपाली तकरीबन 4.25 लाख रुपया उसको नकद मिला। और उसके अलावा उसको उम्रा का टिकट और शाही उम्रे का जो उसको वो मिला, वो शाही उम्रा के लिए जो इंतजामात होते हैं बहुत अच्छे पैमाने पर, उसका उसको हकदार ठहराया गया। और उसके अलावा उसको सर्टिफिकेट मिला और बहुत सी चीजें उसको इनाम के तौर पर दी गई। और सबसे बड़ा इनाम जो सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट पर उसको सऊदी अरब की यूनिवर्सिटियों में अच्छे उस पर काम आएगा। और वो सर्टिफिकेट के बदौलत उसको अच्छी यूनिवर्सिटियों में उसका दाखिला हो जाएगा। तो क्या है, उसने कुरान को पढ़ा, याद किया, उसके मखारिज हुरूफ को समझा, तजवीद की मश्क की। तजवीद मश्क से आती है, मखारिज हुरूफ पढ़ने और याद करने से, और हर हरफ के निकालने के लिए जबान से या हलक से जो जगह मुकर्रर है, ये एक मुस्तकिल एक अलम है, एक इल्म है मखारिज हुरूफ का, उसकी मश्क की। तो यही तलबा जो मदरसे का नाम रोशन करते हैं, अपने जिले का नाम रोशन करते हैं, अपने गांव का नाम रोशन करते हैं, अपने सरपरस्तों का नाम रोशन करते हैं, जो कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। तो इस मौके पर मैं जहां ये मदरसा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के तलबा को और उनके सरपरस्तों को मुबारकबाद देता हूं, उनके असातिज़ा को और इस इदारे को चलाने वाले मुंतज़िमीन को जहां मुबारकबाद देता हूं, वही मैं मुबारकबाद देता हूं जिस इलाके के लोग हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। और साथ ही साथ मैं अपने दूसरे इदारे, मेरे ज़ेरे निगरानी और ज़ेरे इशराफ चलने वाले दूसरे तहफीज का जो दूसरा इदारा है मदरसा ज़ैद इब्न साबित, उसके असातिज़ा को या उसके तलबा भी अगर आए हो तो ये कहना चाहता हूं कि मेहनत करने से हर चीज हासिल होती है। उसके लिए असातिज़ा को भी मेहनत करनी पड़ेगी, तलबा को भी मेहनत का पाबंद बनाना पड़ेगा। पहले असातिज़ा मेहनत करेंगे और पहले असातिज़ा निजाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालेंगे और निजाम के मुताबिक चलेंगे, तो तलबा को वो निजाम का पाबंद कर सकते हैं। और अगर खुद ढीले ढाले रहेंगे और खुद लापरवाही बरतेंगे, सही ढंग से तलबा की निगरानी नहीं करेंगे, हर जुमेरात को सब घर चले जाएंगे और ये 80-90 तलबा को वो खाली छोड़ देंगे भटकने के लिए, गुमराह होने के लिए, इधर उधर फिरने के लिए, तो अच्छे नताइज कभी हासिल नहीं हो सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं और भरी मजलिस में मैं किसी की इज्जत से खिलवाड़ भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ इस मौके पर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे ही ज़ेरे निगरानी ये इदारा भी चल रहा है और मदरसा ज़ैद बिन साबित भी चल रहा है, लेकिन दोनों के उसमें ऐसा फर्क क्यों? और आज तलबा की ये पहली तरजीह क्यों बन गया है ये मदरसा? हमारे पास जगह नहीं है और कितने तलबा को शुरू साल में लौटाना पड़ा।
वापस करना पड़ा। हमारे पास जगह नहीं थी कि हम उनको रख लेते, वापस करना पड़ा, वरना कितने तलबा और उनके सरपरस्त ख्वाहिशमंद थे कि हम मदरसा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान में अपने तलबा को पढ़ाएं। तो यहाँ के तलबा ने अपनी कारकर्दगी से यह साबित कर दिया कि वो खुद भी मेहनत करते हैं और उनके पढ़ाने वाले असातिज़ा भी मेहनत करते हैं, और उसके बाद यहाँ इंतजाम भी बेहतर है, तो इस वजह से वो उनका दिल भी यहाँ पर लगता है। तो ये काम अगर जहां तक रहने सहने का इंतजाम है तो जामिया सिराजुल उलूम के ज़ेर इशराफ चलने वाले ज़ैद इब्न साबित में इससे बेहतर इंतजाम है। मस्जिद की बालाई मंजिल में जामिया की तरफ से 120 बिस्तर का इंतजाम करके वहां पर उनके लिए लगाया गया। बिस्तर जामिया की तरफ से, सफाई सुथराई, टॉयलेट, बाथरूम, हर चीज का इंतजाम इससे बेहतर है। और वो उसी मस्जिद के ऊपर रहते हैं, वहां से नीचे उतर करके आने में, पढ़ने में उनको कुछ वक्त भी नहीं लगता है। सिर्फ खाना खाने के लिए उनको डाइनिंग हॉल में जाना पड़ता है। सारी आसानियां मैसर हैं, लेकिन खातिर ख्वाह निगरानी ना होने की वजह से और उनकी तालीम पर तवज्जो न दिए जाने की वजह से जो काम असातिज़ा के करने का है, वहां के तलबा वो नतीजा नहीं दे पा रहे हैं जो नतीजा उनसे जिस नतीजे की उम्मीद की जाती है। एक बात आपको बताऊं, हमारी बच्चियां भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे कुल्लियतुज़ ज़हरा की बच्चियां यहाँ पर मौजूद हैं। ये अदारा तो और नौमौलूद है, ये 3 ही साल पहले कायम किया गया है और ये 3रा साल अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ है। और उसके बाद यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तालिबात की तादाद अच्छी हो गई और हमारे पास सवारी के जराए नहीं थे, इनको गांव गांव से लाने के जराए नहीं थे। मौलवी ताजुद्दीन साहब की कोशिश से एक बड़ी बस भी मिल गई है और उसके बाद आने जाने की सहूलत हो गई है। और जरूरत पड़ी तो और भी हमारे यही असातिज़ा कोशिश करेंगे और दूसरे जराए नक्लो हमल का इंतजाम करेंगे। तो इस तरह से यहाँ जो कुछ भी अभी आसानियां मैसर हैं उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह नतीजा उम्मीद के मुताबिक है। और इन तालिबात ने 2 साल जो अपने अंजुमन में अपनी कारकर्दगी दिखाई है, यहाँ की मुअल्लिमात वो कुल्लिया आयशा सिद्दीका ही से फारिग हैं। ऐसा नहीं है कि कुल्लिया आयशा सिद्दीका की तालीम में कोई नक्स है, वहां की ही फारिगात यहाँ पर तदरीस का फरीजा अंजाम दे रही हैं और तालिबात की सही ढंग से निगरानी कर रही हैं और उसके बाद अच्छा और बेहतर नतीजा दे रही हैं। खास तौर से मैंने कुल्लिया ज़हरा का जो जिक्र किया है इस मकसद से किया है कि कुरान पाक के पढ़ने का जो सवाब है, कुरान पाक के हिफ्ज करने का जो सवाब है, तो जो मर्दों के लिए है वही सवाब औरतों के लिए है। नमाज का जो सवाब मर्दों के लिए है वही औरतों के लिए है। हर चीज का, हर अमल का, अरकान अरबा का, हर चीज का जो सवाब मर्दों के लिए है वही सवाब औरतों के लिए है। तो क्या आप ये चाहेंगे कि आपके बच्चे तो कुरान पढ़ें, कुरान के हाफिज बन जाएं और उस अजीम सवाब को हासिल कर लें जिसका जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया है कि क़यामत के दिन उनकी इज्जत अफजाई अल्लाह तबारक व तआला के सामने अल्लाह और उसके फरिश्ते करेंगे और उसको जन्नत की सीढ़ियां तय करने की आजादी दे दी जाएगी। तो क्या हमारी बच्चियां, हमारी कौम की ये बच्चियां, उन्होंने क्या जुर्म किया है कि वो इस इतने अजीम सवाब से महरूम रहे? तो कुछ सरपरस्तों ने हमसे गुज़िश्ता साल भी कहा कि हमारी बच्चियां, हमारी बच्ची कुरान पाक हिफ्ज करना चाहती है, आप अगर अपने यहाँ इंतजाम कर दें तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। तो हम इस कोशिश में लगे रहे। हमारे इस काम में हमारे दस्तराज मौलाना मुजीबुद्दीन साहब थे और बराबर ये मुझे हौसला अफजाई करते रहे और मेरी हिम्मत को बढ़ाते रहे। मैंने कहा, जब इन्होंने मेरे सामने तजवीज रखी तो मैंने कहा कि तालिबात के लिए हॉस्टल कायम करना, उनके लिए दारुल इकामा बनाना और उनके रहने का इंतजाम करना एक नाजुक काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। मेरी ऐसी हिम्मत अभी नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा इंशाअल्लाह सब हो जाएगा, जैसे और निस्वा मदारिस चलते हैं हॉस्टल के तहत वैसे ही ये भी चल सकता है। लेकिन मैं इस हॉस्टल कायम करके अगर सरपरस्तों को दिलचस्पी रही इस मामले में, अगर वो ख्वाहिश उनको है कि हमारी बच्ची भी आलिमा फाजिला बनने के साथ साथ हाफिज़े कुरान भी बन जाए, नेपाल में ऐसे इदारे कामयाब हैं या नायाब हैं जहां बच्चियों के भी हिफ्ज कुरान का इंतजाम हो। हमने कुल्लिया आयशा सिद्दीका में भी ये इरादा किया, लेकिन अभी कोई मुअल्लिमा इस तरह की जो हिफ्ज की तालीम दे सके कोई मुअल्लिमा
मिल नहीं सकी। हाफिज कुरान जरूरी है, हाफिज कुरान कोई मुअल्लिमा हमको दस्तयाब नहीं हुई। कुल्लिया आयशा सिद्दीका के लिए डॉक्टर मंजूर अहमद साहब हमारे बगल में बैठे हुए हैं, उन्होंने भी मुझसे कहा कि आयशा में उनके असातिज़ा भी, कुल्लिया आयशा सिद्दीका के असातिज़ा भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर हिफ्ज़ का शोबा कायम कर दीजिए, लेकिन कोई इंतजाम खातिर ख्वाह, वहां तो हॉस्टल है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे इंतजाम के साथ हॉस्टल चल रहा है, तो वहां इतना बड़ा मसला नहीं होगा। तो वहां पर हाफिज कुरान शोबे तहफीज खोलना कोई मुश्किल काम नहीं है, यहाँ और वहां साथ साथ खोला जा सकता है, क्योंकि वहां तो पहले से हॉस्टल मौजूद है, यहाँ तो नए सिरे से कायम करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो वहां पर हॉस्टल कायम कर पहले से कायम है, इसलिए शोबे तहफीज का कायम करना बच्चियों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन चूंकि अभी हमारी जमात में या औरतों में, खवातीन में, किसी भी जमात में हिफ्ज़ का रुझान अभी नया नया है, इसलिए अभी हाफिज़ कुरान मुअल्लिमात हमको दस्तयाब नहीं है, तो ये काम इतना आसान नहीं है। जिस दिन हमको कोई माकूल हाफिज़ कुरान मिल गई हमारे इन बच्चियों में से जो हाफिजा भी हो और आलिमा भी हो, तो हम उसको खोलने में इंशाअल्लाह कुल्लिया आयशा सिद्दीका में भी देर नहीं करेंगे। हम सब मिल करके सारे इदारे चलाते हैं, हमारी एक कमेटी है, हमारे खानदान के लोग एक कमेटी है, डॉक्टर मंजूर अहमद साहब अब वहां का इंतजाम देख रहे हैं। कुछ अरसे से हमारे भाई बिरादर मुकर्रम भैया अब्दुल रशीद खान रहमहुल्लाह की अभी वफात हुई है 1-1.5 हफ्ते पहले, तो वो मरते दम तक कुल्लिया आयशा सिद्दीका के इंतजाम को देखते रहे, बिस्तरे मर्ग पर पड़े हुए थे, जब तक होश हवास बाकी थे उसके बारे में आने जाने वालों से बात दरियाफ्त करते रहते थे, डॉक्टर मंजूर साहब को हिदायत देते रहते थे। तो अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि अब उसको चलाएं, बेहतर ढंग से चलाएं। तो शोबे तहफीज वहां भी कायम करने का प्रोग्राम है, और यहाँ इंशाअल्लाह इसी साल मौलाना मुजीबुद्दीन साहब ने किसी हाफिज कुरान को देख लिया है या इंतजाम कर लिया है, तो इसी साल यह शोबे तहफीज यहाँ पर कायम करने का इरादा है बच्चियों के लिए। और ये बिल्डिंग जो आप सामने देख रहे हैं उसकी तामीर हो रही है, इंशाअल्लाह 1 हफ्ते 10 दिन में उस पर छत पड़ जाएगी, और रमजान में उसकी सफाई हो करके वो उसके चंद कमरे तैयार हो जाएंगे। 2 कमरे बड़े बड़े हाल नुमा कमरे हैं, 2 कमरे तालिबात की रिहाइश के लिए हम खास कर देंगे, और जुनूबी साइड में एक बड़ा हाल है उसको तालिबात के पढ़ाने के लिए खास कर देंगे। उनके रहने सहने का, खाने पीने का यहाँ पर इंतजाम हो जाएगा, और जो कुछ मसारिफ और अखराजात होंगे उतना ही उनसे लिया जाएगा, जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तरह से और बाज मदारिस की तरह से इतना नहीं लिया जाएगा कि जो उनके सरपरस्तों के लिए बोझ हो या जो मदरसे वालों के लिए आमदनी का जरिया हो, बल्कि जो उनके खाने पीने पर, रहने पर जो खर्च आएगा वो खर्च उनके सरपरस्तों को से लिया जाएगा, जो उनके लिए ज्यादा नहीं होगा, जो आसानी के साथ उस खर्च को बर्दाश्त कर सकते हैं। हमने देखा है कि जो सरपरस्त हजरात अपने बच्चों और बच्चियों की तालीम के लिए वो 1000-1500 रुपया महीना भी देना गवारा नहीं करते हैं, और वही जब अपने इन्हीं बच्चों की, अपनी बच्चियों की शादियां करते हैं तो कई लाख रुपया लुटा देते हैं, इसराफ में खर्च कर देते हैं। और आलिमा फाजिला बनाने के लिए और हाफिज कुरान बनाने के लिए उनको ये तौफीक नहीं होती है कि दीन के रास्ते में, इल्म के रास्ते में और तालीम के रास्ते में कुछ खर्च करें। तो इस दीनी तालीम की अहमियत को समझें और इस रास्ते में खर्च करें, और उसके बाद अपनी बच्चियों को बाइज्जत जिंदगी दें, अपने बच्चों को इज्जत की जिंदगी दें। कल को कोई ये ताना ना कर सके, कि इनको ताना ना दे सके कि अरे तुम्हारा ये बच्चा तो खैरात के पैसा खा खा करके इसने तालीम हासिल की है, और इसने लोगों के सामने, मदरसे वालों के सामने खैरात खा करके, और वो वहां उसके वो जो वहां से खाना मिलता है खैराती खाना खाया है। आप इज्जत की जिंदगी दें अपने बच्चे को, इज्जत की जिंदगी दें अपने बच्चियों को, और अपने दूसरे बहुत से कामों में, फजूल के कामों में, इसराफ के कामों में, शादी ब्याह के गैर जरूरी रसूमात में जो पैसा खर्च करते हैं वो पैसा अपने बच्चों बच्चियों की तालीम पर खर्च कीजिए। ये पैसा आपका इंशाअल्लाह कभी गायगा नहीं जाएगा। अपने बच्चों को भी, अपने बच्चियों को भी हाफिज कुरान बनाने की फिक्र कीजिए। इससे आपकी दुनिया बने या ना बने, आपकी आखिरत इस बात की गारंटी है, इस बात की जमानत है कि आपकी आखिरत इंशाअल्लाह बन जाएगी। मैं आप तमाम हजरात को का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूं, और खास तौर से हमारे जिन भाइयों ने चंदौटा या मुजाफात के या आसपास के गांव के हमारे जिन भाइयों ने
इन तलबा को नवाजने के लिए, इन तलबा को एजाजात से नवाजने के लिए जो कुछ खर्च किया है और इसमें हाथ बटाया है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे जामिया का एक पैसा नहीं खर्च हुआ है, यहाँ के लोगों ने ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। हम आप यकीन करें, ये चन्नौटा के जो अहले खैर हजरात हैं, यकीन करें आप लोग कि आपका जिक्र खैर मैं झंडे नगर में जाकर के करता हूं कि झंडे नगर के मदरसे के लिए, जामिया सिराजुल उलूम के लिए कोई वक्ती जरूरत पड़ जाती है तो वहां के लोग इतना बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लेते हैं जितने आसानी के साथ यहाँ के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और उसके बाद यहाँ के कामों को आसान बनाते हैं। तो मैं जिन लोगों ने भी इसमें किसी भी तरह का ताउन किया, हिस्सा लिया, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जो इन तलबा के सरपरस्त यहाँ पर आए हैं अपने कामों का हर्ज करके, अपने वक्त की कुर्बानी दे करके जो लोग यहाँ पर आए हैं, उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा हमेशा इस इदारे से, मदरसा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से, कुल्लियतुज़ ज़हरा लिल बनात से हमेशा जुड़े रहेंगे और इसको अपना इदारा समझेंगे। इसकी तामीर व तरक्की से आपको हमेशा लगाव रहेगा, दिलचस्पी रहेगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।